سلام علیہ بادشاہ سلام اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وأهل بيت الطيبين الطاهرين معصومين المظلومين ولعن الله منقذ فضائل وغاصب حقوقهم أجمعين صلوات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ازل سے ابد تک ان کا محافظ نعرہ حیدری حسینیت وزیریت برائے ظہور منتقم خون علی اصغر بلند تر صلوات بادشاہ کی سلامت کی 1444 محرم الحرام مرکزی امام بارگاہ امیر حسین عشرہ محرم کے سلسلے کی آج ہماری یہ چھٹی نشست بعنوان علی اللہ نہیں مگر یہ مگر میرے اندازے سے بڑھ کر چکنا شروع ہو گئی ہے کچھ دعاؤں میں کہا گیا دعا فرمائیے سرکار مولانا حسین بادشاہ صدقہ شہادت انجسر کا سید محمد علی شاہ صاحب سیدہ کانہ کو اولاد نبیہ صحیح عطا فرمائیں کہ بہن پریشان ہیں غریب ہیں مالک ان کی تمام تر پریشانیوں کو دور فرمائے یہاں جو بھی بچے ہیں جتنے بھی ہیں مومنین مومنات عزادار صدقہ اسی شہزادے کا کہ اس کے صدقے میں حسین بادشاہ عالمین بھی لوٹا دیں تو بہت کم ہے اسی شہزادے کے صدقے سے آپ کی ہر وہ دعا جو آپ کے لبوں پہ ہے آنکھوں میں ہے یا قلب میں ہے میرا مالک ان سب کو قبول منظور فرمائے بالخصوص اس فرش ادب کو ظاہری طور پر ممکن بنانے میں جو بھی شامل رہا کرنل صاحب سے لے کر ان کے اہل خانہ ان کے گھر کے تمام افراد دوست احباب مالک ان سب کو عزت عطا فرمائے رزق عطا فرمائے صحت عطا فرمائے ہماری محنت تدہیر یافی مالک ان کے ہر مشکل کو آسان فرمائے ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے اور ان کے معاملات کو ان کے لیے آسان اور نرم فرمائے اپنے اپنے دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات زمانے نے ہمیں دیوانہ قرار دیا لیکن ہم یہ بتانا چاہتے ہیں دیوانے اور پاگل میں بڑا فرق ہوتا ہے ہم دیوانے کو ہیں پاگل نہیں ہیں ہم کوئی پاگل نہیں جو علی کو اللہ کہیں کیونکہ علی کو اللہ کہنے والا پاگل ضرور ہے لیکن جو علی کا دیوانہ ہے وہ یقیناً یہ کہے گا ہاں مانتے ہیں علی اللہ نہیں مگر پتہ نہیں کیا وجہ ہے اللہ کیسا لگتا ہے اب یہ صرف میں تھوڑا نہ کہہ رہا قرآن اس کی ضمانت ہے فرامین رسول اس کی ضمانت ہے کل بات ہو رہی تھی کچھ دائرہ محرم کے ایام میں سمجھ سکتا ہوں کچھ چہرے تبدیل ہوتے رہتے ہیں لیکن جب بات تسلسل میں چل رہی ہو اور وہیں سے شروع کرنی ہو تو جو چہرے نئے ہوتے ہیں
या पिछले रोज नहीं है, उससे पहले है। तो बस एक का जुमला मैं कह रहा हूँ ताकि रब हो जाए। कल बात हो रही थी ताले, ताला, एक जुमला दोहरा रहा हूँ ताकि तसल्सल बन जाए। अल्लाह ताला है और उसकी चाबी को अली कहते हैं। अल्लाह ताला है, सभी है। अब आप जैसा ताला समझें, वो ताला वाला ताला भी है और वो इसरार का ताला भी है। कायनात का हर राज उसमें बंद है। अगर जानना चाहते हो तो याद रखना, यहाँ अगर किसी बैंक में चंद लाख करोड़ पड़े हों और आप बैंक वाले की मर्जी के बिना वहाँ से निकालना चाहें, लोग चोर कहते हैं, डाकू कहते हैं, पुलिस पकड़ लेती है, मुकदमा चलता है, सजा होती है। अल्लाह के कुंतो कंजल मगफिया का खजाना भी ताले में बंद है। अली की सही चाबी लगाना, गलत चाबी लगाई अल्लाह पकड़ लेगा। इसलिए आपको चाबी भी दी और दे नहीं दिया, इसलिए एक चाबी अपने पास में रखी है। मैनेजर साहब एक चाबी उनके पास होती है, एक चाबी आपके पास होती है। आप उसके अंदर कीमती अशिया रख के बैठे हैं और एक दिन बड़े ज़ौक़ शौक़ से गए अपने साथ अपने कुछ लोग आपको देते, देखो तो बड़े बैंक में इतना बड़ा लॉकर, हमारा लॉकर, हमने उसमें क्या क्या सामान रखाया। आप हम चाबी ले गए तो आपने गए खोल रहे नहीं खोल, चाबी तो यही है, लॉकर भी यही है, खोल क्यों नहीं कहा। पीछे से मैनेजर साहब ने आके कहा भैया ये जब तक हमारी चाबी नहीं लगेगी खोलेगा नहीं। कहा जी बात करें, आपने तो हमें नहीं दे दिया था ये लॉकर। कहा ना दिया था, दे थोड़ी ना दिया था कि जब तक हम अपनी चाबी नहीं लगाएंगे तब तक नहीं खुलेगा। और ये क्या बात हुई, फिर क्या फायदा हमारी चाबी का। कहा आपको चाबी इसलिए दी है ताकि आपको ये एहसास रहे कि आपका है। कहा कैसा हमारा है। कहा आपको इसके लिए एहसास रहे आपका है और अपने पास मास्टर की हमने इसलिए रखी है ताकि आपको पता रहे आपके पास है, आपके जैसा नहीं है। हमारे बिना खोल के तो दिखाओ इसको जरा, आपने मिलियत ही समझ लिया। आपको क्या पता इस लॉकर के रमूज का, इसरार का। आप चाबी लगाइए, आपको सिर्फ इसलिए दिया आप कह सकते हैं हाँ 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 लॉकर हमारा, लॉकर हमारा, लेकिन खोलेंगे तो हम खोलेंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह
نے دیا ہے. میں کہہ رہا ہوں آپ کو اللہ دیا گیا ہے. اللہ نے دیا ہے یہ بات اور ہے, آپ کو اللہ دیا گیا ہے یہ بات اور ہے. سمجھیں ذرا, آپ نے پڑھا لا الہ الا اللہ, آپ کو صرف بتایا گیا ہے ایک بہت قیمتی لاکر ہے, کائنات کے سارے خزانے اس کے اندر بند ہیں. آپ نے کہا میں چاہتا ہوں اس لاکر کو کھولا جائے, تو انہوں نے کہا اس کو کھولنے کے لیے آپ کو اس بینک کی ممبرشپ لینی پڑے گی. کہا ممبرشپ کیسے ملے گی؟ کہا بس لا الہ پڑھنا پڑے گا, ممبرشپ مل جائے گی. آپ نے لا الہ پڑھا, ممبرشپ مل گئی, ایک چابی آپ کو دی گئی. اب آپ لگے ہیں اس چابی سے اس لاکر کو کھولنے کہ اللہ کا یہ علم کا خزانہ مل جائے, علم کا خزانہ مل جائے, اولاد کا خزانہ مل جائے, رزق کا خزانہ مل جائے, ہمیں اس کے سارے خزانوں کا حصے مل جائے. کھولتے رہیے اپنی مدد آپ کے کہے, کہتے رہیے ہمیں یہ چابی کافی ہے. دکھاؤ ذرا کھول کر, تمہارے اکثر سے پول کھلیں گے اس کے نہ کھلنے سے. اتنے لائق ہونے والے کو کھول کے دکھاؤ نا, پھر اللہ کو خود کہہ رہا ہوں یا الذین آمنوا. آمین. اے ایمان والو, ایمان لے آؤ. کافر کو ایمان لے آؤ, اے مشرک کو ایمان لے آؤ, ایمان والو ایمان لے آؤ. اور لگے کو ایمان لا چکے, آپ خود کہہ رہا ہے آمین لائی لوگین آمین ایمان والو. پہلے خود کہہ رہا ہے ایمان والو, پھر کہہ رہا ہے ایمان لے آؤ. اگر ایمان نہیں لائے تھے تو پھر تم انہیں ایمان والا کیوں کہہ رہا ہے؟ اور اگر ایمان لا چکے ہیں تو اب کیا لانے کا کہہ رہا ہے؟ آپ کو آسان کر کے سمجھا. اکثر بات ہوتی ہے, دیکھیے کوئی بندہ کسی کو کہتا ہے, کسی نے کوئی غلط کام کر دیا, کوئی بچہ ہے, کوئی جوان ہے, اس نے کچھ کام خراب کر دیا, کچھ کام ٹیڑھا کر دیا, چلو بندے کا پتر بنا, وہ انسان کا دیکھا کام کر رہا. کیوں؟ وہ بندے کا پتر ہے نہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ مثال دے کے باتیں سمجھاؤ جلدی سمجھ میں آ جائے. پتر ہے انسان نہیں بھائی, انسان کو ہے. آپ کو کیا کر رہا ہے, دو کام دے دو, ہاتھ سارے کام کھانا, آپ بھی اچھا آپ کو کیا انسان بنے. بھائی پتہ چلا کہ تمثیلاً کہا جاتا ہے جب ایسی حرکتیں کی جائیں تو عام طور پر انسان نہیں کرتے, تو کہتے ہیں انسان بننا کیسی حرکت کر رہا ہے. جب بندہ حرکت نہیں کرتا کہتا بندہ بن جا. بس سمجھو اللہ کو اللہ ہے, وہ بس ایسے کہہ نہیں سکتا تھا, اسی لیے کہا ایمان. یہ آمین و آمین کے درمیان میں جو پاز ہے نا, پاز سمجھ بڑا خطرناک ہے. بندے کا پتر اللہ بھی کہہ رہا ہے ایمان والو ایمان لے آؤ. خدا کی قسم اللہ رب العزت کی بات کرنا پڑے گا کہ آپ اور آدم سے کرنا, ورنہ اللہ سے کوئی پوچھے تو صحیح, تو پھر اللہ جب بتانے پہ آئے تو بتائے کہ اس کے درمیان میں کیا ہے. ایمان والو ایسے کہتے ہی ہو ایمان والے ہو, ایمان لے آؤ. اگر اللہ کہہ دیتا انسان بنو تو تم تو انسان رہتے ہی نا. پتہ رکھو, ایمان لے لیا ہو. پتہ چلا خالی ایمان کا دانا کافی نہیں ہوتا. ایک ایمان ہے جو زبان پہ ہے, ایک ایمان ہے جو قلب میں ہے. زبان کا ایمان کافی
दे दी गई। एक है चाबी ईमान ले आओ, वो है मास्टर की, जो मास्टर के पास होगी ना। घर का ताला आपका खराब हो गया तो की मास्टर को बुलाते हैं ना, वो मास्टर की मास्टर के पास है। आप अपने इन ताले उस लॉकर को, खजाने को खोलने के लिए अपने ईमान की चाबी लगाओ, लगेगी जरूर, काफी नहीं है, लगेगी जरूर, काफी नहीं है। बस जिसने पहली बार कहा था ना हमें ये काफी है, तब से अब तक चोरों की तरह खोलने की कोशिश कर रहा है। खोल रहेगा, देखिए चाबी काफी है, थोड़ा क्यों कभी इधर से ठक ठक, उधर से ठक ठक, ऊपर नीचे से कोशिश कर रहे हैं, नहीं खुलेगा। यहाँ बैंक का लॉकर नहीं खुलता, ये अल्लाह का लॉकर है, धोखा ठाकी से नहीं खुलेगा। अल्लाह सब्र करके बर्दाश्त किए बैठा है। अगर वक्त आ गया ना, जितनी ठक ठक तुमने इस लॉकर पे की है, जरा आप तो लेने दो उसे, बादलों पे बैठ के ऐसा ठक ठक करके वापस करेगा, नसलेगा। मैं हिसाब से बता रहा हूँ, बड़ी शास्त्री के साथ करने के साथ एक तफसील रख के सारी बात कर रहा हूँ। मुझे बताइए क्या ऐसा नहीं है? क्या इस्लाम के, ईमान के, तौहीद के इस लॉकर पर जबरदस्ती इसे मास्टर की के बिना खोलने के लिए थोड़ी ठोकर ठाकी दी गई है? हर तरफ से तौहीद के इस लॉकर को यहाँ से बंधो, वहाँ से निचोड़, वहाँ से इतनी छेड़छाड़ की गई है, इसको खोल नहीं रहा। और कोई हरवा नहीं इस्तेमाल कर लिया गया इसको मार पीट के किसी तरह अपने से खोलने, हालत बिगाड़ दी है आपने, लेकिन खोल फिर नहीं रहा। जिद पे है आप, अल्लाह की बर्दाश्त को आवाज मत दो। चाबी वाले को आवाज दो, और चाबी वाले को आवाज देने के लिए कहना पड़ता है या अली माला। यही है आपका या अली माला। क्यों? आपको क्या ख्याल है कि खाली आप ही आएगी मदद करेंगे, आप ही को तो हर जगह हर एक को अपने अपने मामलात के तहत खसूसी चाबियों की जरूरत पड़ी है। अरे तो पड़ी है खसूसी चाबियों की जरूरत। जब सब चले गए थे और रसूल कह रहे थे कहाँ जा रहे हो, और उन्होंने बाद में कहा मैदान में चलने वाली तेज हवाओं की वजह से आवाज नहीं आई। भला ऐसे हो सकता है हम सुन ले कि आप बुलाते हैं हम वापस ना आते? किसी ने कहा मैं पहाड़ पर बहुत ऊंचा चढ़ गया था, आवाज ही नहीं आई। आप इतना ऊंचा चढ़ क्यों जाते हैं कि रसूल की आवाज ही ना आए? चढ़िएगा या कहां तक चढ़िएगा? मैं कुछ कह रहा हूं, मैंने फिर कहा कुरान से साबित, मैं पहाड़ पे बहुत ऊंचा चढ़ गया था। हाय, चढ़ तो पहाड़ पे मुंह का बेटा ले गया था। तो क्या बचा? नहीं बचा ना। तो ये जो पहाड़ पे चढ़ गए थे, लगता है बच गए, बचे नहीं हैं, ये सिर्फ बचे हुए हैं उस वक्त तक के लिए जिसके बाद बचेंगे नहीं।
में संभालें, अपनी है ज़ाती है, ज़िंदगी की कमाई है आपकी, लॉकर में संभालें। इनामों की खराब है, वो ऐसी शय से नवाजे गए हैं आपको, किसी को नहीं लॉकर में संभालें। दूसरी कौन सी शय? दूसरी वो शय संभालेंगे, ऐसा नहीं होता है, ये आम बंदा नहीं समझ सकता, दुश्मनदार बंदा समझता है। होता है कि लोगों की दुश्मनियाँ होती हैं, आज भी अगर आप गाँव में आप किसी ऐसे जगह चले जाएं, बड़े दुश्मनदार बंदे होते हैं, और जहाँ पर दुश्मनदार बंदे होते हैं ना, दुश्मन आपकी दुश्मनी किससे? सुबह सुबह तो गली में आता है ना सफाई करने के लिए जमाना, बात अच्छी तरह सफाई की कि मेरी झड़प हुई, तब से दुश्मनियाँ हमारी लाख लान तेरी दुश्मनी जमादार है। दुश्मनदार का पता कैसे चलता है? जितनी बड़ी दुश्मनी हो उतनी बड़ी, और फिर बंदा दुश्मन को भी संभाल के रखता है ताकि आगे नस्लों तक गवाही पहुंचाई जा सके। ये देखो दस्तावेजात हैं, ये देखो निशानियां हैं, ये देखो हमने संभाल के रखा है, रखो इसे, यही मेरे नौकर में संभाल के, क्यों? मेरे आने वाली नस्लों में बेटा आए और वो इसे देखे, उसे पता चले कौन दुश्मन है। बस इसीलिए रसूल ने भी कुछ दुश्मनदारियां संभाल के रखी है ताकि बेटा आए तो दिखाए। आप सलामत रहे, आप मौला को इज्जत अता करे, हाथ उठा के आप सारी कीमत समझ रहे हैं। रसूल से तो पूछिए उन्हें संभाली क्यों है? संभाल के रखी है, बेटा आएगा, संभाल के रखी है, बड़े काम है बेटे को, जब आएगा थोड़े काम है बेटे को, इतने काम करने बेटे को, कुछ तो रसूलुल्लाह ने संभाल के रखी है। बेटा तुम इतने काम करोगे, चलो कुछ मैं संभाल के रखता हूँ, तुम्हें ढूंढना ना पड़ेगा। जब तक लोग मास्टर की निगाह खुल है, और जब वो खुले तो फिर क्या मिलेगा? अल्लाह लताफत के साथ आप होगा, मैंने पहुंचा दी, समझा, तो जब होगा तो मिलेगा क्या? अल्लाह। सोचो तो सही, वो चाबी कैसी होगी जिसके लग जाने से अल्लाह मिलता है? जो जदीद किस्म के लॉकर होते हैं ना, उनकी चाबियां, कुछ तो चाबियां वो पुराने जमाने की दंदानों वाली, फिर जमाने बदलते गए, चाबी फिर जदीद जमाने की सबसे जदीद तरीन। आज जब जमाना अपने तरक्की के इंतहाओं को छू चुका है, साइंस में इतनी तरक्की कर रही है, देखो आज हम कहाँ कहाँ सितारों सैयारों पे कमंद डाल रहे हैं, चांद पे हमने कदम रख दिया है, मरीख पे हमने भेज दिया, क्या यहाँ हमने देखो क्या क्या तरक्की कर ली तूने। ये बर्मुडा ट्रायंगल तो जाके दिखा नहीं सकते, चांद पे चले गए, बर्मुडा ट्रायंगल तो जाके दिखाओ, वहीं जाओगे जहाँ जाने की इजाजत दी गई है। अगर जाने वाले ने चाहा कि तुम चांद पे चले जाओ तो चला गया, वो नहीं चाहता तुम वहां आओ जहां हम बैठे हैं। अच्छा ये भी एक बड़ा मामला है, देखिए मैं समझाऊँ, वो तभी खड़ा मुझे देख रहा है चश्मे के पीछे से, इसके साथ एक बार बात कर रहा है, मेरा ख्याल है बहुत छोटा होगा
ये शायद बेहतर भी नहीं हुआ था। मेरे उस्ताद मुकर्रम डॉक्टर सैयद ज़मीर अख्तर नकवी साहब काम बुलंद दर्जात को बुलंद करे, उन्होंने अशरा पढ़ा था। ये लाहौर में बोला खाने सना बरमूदा ट्रायंगल। जब उन्होंने बताया था कि ये जजीरा खिजरा, जो बुजुर्ग यहाँ तशरीफ फरमाए जो गवाह हैं इस बात के, तो उन्होंने जजीरा खिजरा जो बरमूदा ट्रायंगल जहाँ इमाम ज़माना मेरे बादशाह की हुकूमत का ज़ाहिरी तख्त है, वहाँ वो नस्ल एक उसके बाद जवान होके आ गई। पुरानी नस्ल के तो जहनों में है ये बात, तो इससे ये बात कही थी। मुझे कह रहा था कहता अब्दुल्ला वो तो मतलब अब जो जवान नस्ल है उन्होंने तो सुना ही नहीं है, तो आप क्यों नहीं सुनाते? मैंने कहा डॉक्टर साहब ने ऐसा कमाल पढ़ा है, मैं कैसे दोबारा सुनाऊँ? कल नौजवान नस्ल ने सुना ही नहीं है, बुजुर्गों को जहन में होगा। मैं आपको क्या बताऊँ, तब मुतस्सिर नहीं तो इंशाअल्लाह इस पर मुफस्सल गुफ्तगू करेंगे। फिर सिर्फ ये नहीं बताएंगे कि बरमूदा ट्रायंगल क्या है, जज़ीरा खिज़रा क्या है, फिर ये बताएंगे कि इस ज़मीन पर कहाँ कहाँ इमाम ज़माना के तख्त हैं। आप दुआ करें मालिक से, मालिक ने जब ज़िला किया इंशाअल्लाह इसको जब बरमूदा ट्रायंगल आप ये यूएस से जाएँ अमेरिका, आप मियामी से अगर निकले और मियामी से निकल कर जिसको आप क्रिकेट की वजह से जानते हैं वेस्ट इंडीज आप बोलते हैं, वो छोटे छोटे जज़ायर पर मुश्तमिल इलाका, तो आप वहाँ से निकले अगर मियामी से और आप ये वेस्ट इंडीज़ की तरफ ट्रिनिडेड एंड टोबैगो एक वहाँ का जजीरा है, आप उसकी तरफ सफ़र करें तो बीच रास्ते में समंदर के बीच में एक इलाका आता है, समंदर के बिल्कुल जो एक ट्रायंगल की शक्ल का है, मुसलसल ट्रायंगल की शक्ल का, वहाँ का पानी बाकी समंदर के पानी जैसा नहीं है। पढ़ते हैं ना सिर्फ एक गुल्ले की वजाहत कर रहा हूँ, तब पढ़ेंगे बिल्कुल ऐसे जैसे दूध होता है, दूध या रंग का पानी है, वहाँ पर फिजा में धुआं है, धुआं अंदर क्या है दिखाई नहीं जा सकता, क्योंकि जो अंदर जाता है दोबारा बाहर नहीं आता। कितनी जदीद साइंस है, कितने इनके पास जदीद तरीन निज़ाम है, जदीद तरीन इनके पास बरकी आलात, बहरी हवाई जहाज, तेज से तेज जहाज भेजा, अंदर गया उधर से बाहर नहीं आया, बहरी जहाज भेजा, बोट्स भेजी, जो चाहता है आता है, एक ही पैगाम वापिस आया जो आज तक आया, सब ज्यादा से ज्यादा कि यहाँ हमारे आलात ने काम करना शुरू किया है, कंपस काम नहीं कर रही, हमें पता ही चल रहा शिमाल कहाँ है, जनूब कहाँ है, यहाँ पर हर तरफ धुआं ही धुआं है, सफेद ही सफेद है, पानी भी सफेद, आसमान भी सफेद, धुआं भी सफेद, कुछ नजर नहीं आता। साइंस की जाकर चुप हो गई। यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का बहुत ताकतवर निजाम है। बस ये बताना चाहते हैं, जिसे तुम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हो, हम उसको इख्तियार वलीउल असर कहते हैं। तेरी दुनिया की एक वेव है, एक लहर है, मकनातीसी लहर। मेरा इमाम मकना इलेक्ट्रो, बच्चों को समझेंगे, हाल समझेंगे, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रो बर्की मैग्नेटिक मकनातीसी वेव लहर, यानी मकनातीसी बर्की लहर, हवा में लहरें होगी, आपको नजर नहीं आ रही, मेरी आवाज आप सुन रहे हैं, आपने साइंस का चक्कर खुल गया, कैसे ना खुले। अली बादशाह की अपनी जात को साइंस कहते हैं। शियों के इज्तिमा में जाकिर हुसैन में हुसैनियों के बीच बैठते अली पढ़ रहा है, लोग बड़े महजूद हो रहे हैं। आप यकीन करो इस मिंबर की कसम गाजी बादशाह के अलम के फहराने से चलने वाली हवा का सदका है। तुम अगर मुझे यहाँ सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में खड़े करके साइंस के स्टूडेंट्स को बिठाओ, मैं साइंस के हर कुलिये से अली साबित करूँ, कोई माई करा लेगा। Allah
के सलाम करता है। अली का वो पाका सादिक बेटा जो कहता है मुझे अपने इमाम होने से ज्यादा इस बात पर फख्र है कि मैं अली की विलायत पे कायम हूँ। वो अली का पांचवा बेटा जब बैठकर जूती उतार दे तो आज केमिस्ट्री जिसको बाय केमिस्ट्री कहती है ना, वो जाबिर बिन हयान वो जूतियां साफ करके जाबिर बना। जूतियां साफ कर करके आज साइंस जिनको पढ़कर तीर मार वो सा कैमरा डालो पता नहीं क्या सारी चीजें बहन जा रही हैं सब बहन मकनातीसी लहर। तो मुझे सुन लो ये भी लहरें हैं, मेरी आवाज से करती है हवा की एक लहर दूसरे को पास करती है, ऐसे तुम्हारे कान तक पहुंचा दे सारी लहरें। आप कंपस कैसे बने हैं? मकनातीस कुदरती तौर पर मकनातीसी लहर रखी गई जिसकी बुनियाद पर कंपस आपको डायरेक्शन बता देते हैं। मकनातीस का असूल क्या है? मकनातीस कहते हैं अंग्रेजी में मैग्नेट, और कुछ खास जबान में चुंबक होता है क्यों चिपक जाता है। ज्योमेट्री बॉक्स में तो होता है, बचपन में जितने बैठे बड़े वो बकायदा जो बड़े बड़े मकनातीस होते थे फेंकते रहना, वो स्कूल में ले जाना, कभी किसी के पेट को लगाना वो खींच गई, हर चीज़ उससे खींचते रहते, हर चीज़ खींचते रहते। आवाज़ पहुँची आपका स्पीकर से पहुंची, डब्बा खोल के देखो अभी इसमें मैग्नेट मिलेगा, मकनातीस खींच लेते, इसकी सारी हर शय को खींच लेते हैं, अपनी तरफ खींचती है। अली मकनातीस है, हलाली खींच जाता है। खुदा का वास्ता बड़े तसल्सल से और सब्र से चलते यहाँ तक आए तो सलाम करो। अच्छा चलो फिर साबित करूँ कैसे है कि लफाजियत नहीं है। दो पोल होते हैं मैग्नेट के, मैं ऐसे नहीं कह रहा, खुदा की कसम दो पोल होते हैं मैग्नेट के, ठीक है। अलग अलग शोबों से वापस का लोग अलग अलग नाम देते हैं, कुछ नॉर्थ पोल साउथ होते हैं, पोल्स के हवाले से भी जानते हैं। कुछ कहते हैं नेगेटिव पॉजिटिव, मंफी मसला है, ये गलत से आता है। ये दोनों तरफ के रिएक्शन एक होता है ना, जरा मिला के देखो, एक सेम होगी ठाक करके मकनातीस ठाक करके हो जाएगा दूसरे से, और दूसरी सिमत है आप मकनातीस को ऐसे उसके करीब करें वो अभी ये क्या होगा भाई मकनातीस में फॉल्ट ना ना मकनातीस में नहीं, तो फिर पकड़ क्यों नहीं गा, बल्कि उसको जोड़ोगे वो प्रेशर से और दूर और प्रेशर से और जो जुड़ गया वो है पॉजिटिव पोल, जो नहीं जुड़ रहा वो है नेगेटिव पोल, माइनस प्लस मस्बत मंफी। अली कौन है? अली है अल्लाह का मकनातीस, हलाली जुड़ जाता है, हरामी तो मुस्कुराहटों पे मैं को उड़ा जाऊं, ये चेहरे अली की बिना की मस्ती में खिले रहे, हाथ उठा के ऐसे मकनातीस है, जैसे इस मकनातीसियत का इजहार होता है ऐसा आज साइंस का सबसे स्ट्रॉन्ग सबसे ताकतवर मकनातीस उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कहा जाता है ना। ये पूरी आपकी जितनी
क्या कहूँ, जमीन, आपका प्लैनेट, ब्रह्मांड, जो भी आप अलग अलग जुबानों में नाम दिया हुआ है, इस हर जगह पे मकनतीसी ताकत ने इसको घेर रखा है। मकनतीसी ताकत है। जब तक आप उस पोल के साथ पॉजिटिव पोल नहीं मिलाते, आपको वो पास ही नहीं करती, आप जा ही नहीं सकते, दूर पास ही नहीं करती। हाय, खुदा के साथ बात बड़ी खुल जाएगी। बड़ा रहा है कायनात का आज तक, नाम सुना होगा तुमने, ब्लैक होल, है ना? बच्चों को बड़ी दिलचस्पी है इससे। अगर मालिक की रजा मंशा रही, तुम्हें कल मैं ब्लैक होल सुनाऊं, तुम्हें लग समझ जाए। सब पटक रही है आज की साइंस। दौरे जदीद का सबसे बड़ा साइंटिस्ट आज जिसको साइंस मानती है, स्टीफन हॉकिंस। बाप मानते हैं अपना आज के साइंसदान, और हकीकत भी नहीं है। उसने कहा कि ऐसे सपने का की पार्टी आएगी। उसने अपनी थ्योरी को कहा नहीं, मैं कर सकता, ऐसे होने का की पार्टी। इतना बड़ा साइंसदान है, वो कहीं यूं है, कहीं यूं होगा, यूं है। तंग आते हैं इनसे। वो ये 4 साल पहले छोड़ के चला गया, मर गया। अच्छा, समझ ही नहीं सकते स्टीफन हॉकिंस को, और जो स्टीफन हॉकिंस को ना समझ सके, अली समझने चाहिए। ब्लैक होल पर सबसे बड़ी जो संत माना जाता है वो स्टीफन हॉकिंस। अगर कल तक मैं मालिक ने रजा मंशा साथ हुई तो तुम्हें बताऊंगा ब्लैक होल का और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का आपस में ताल्लुक क्या है। ये मकनातीसियत है, देख नहीं पाई ना आज की साइंस। ब्लैक होल वो कभी वो चीज है, ब्लैक होल क्या करता है, कोई चीज ब्लैक होल के पास से गुजरती क्या होता है, ब्लैक होल के अंदर गायब। तो ये ज़ूम होती कैसे है, क्या चीज खींचती है अपनी तरफ, मकनातीस। इतनी छोटी सी बात है, मैं ऐसे ही कहता। जिन्होंने वो आने वाले हैं कि मेरी शिष्टन सुनी हुई है ना, उसमें मैंने जितने दिनों तक स्टीफन हॉकिंस से बात की थी, उसकी वजह ये थी, खुदा की कसम, मेरा बेटा स्टीफन हॉकिंस जिंदा होता और मैं उसके मुल्क में होता तो पूछता नहीं, उसे बताता ब्लैक होल में जाना कैसे है। छोटी बात नहीं की जाती है, दीवाने की बात नहीं है। मैं कहीं अकेले में नहीं बैठा तो बोल रहा हूँ, क्या नहीं बताया। इन्हीं के बड़े थे जिन्होंने E=mc² को कह दिया, बाद में पता न चले साबित कैसे करना है। सर पटक पटक के रह गया, नहीं पता चला। बेनाखिर आए हुसैन पर चढ़ी, अली के नौकर को खत लिखा, उसी ने बताया तू आज की बात कर रहा है। 1400 साल पहले मोहम्मद ने मेराज पे जाके यही तो बताया। वहीं से अली मकनातीस है, अली मैग्नेट है, मैग्नेट है। हलाल दारा फौरन उस मैग्नेट की तरफ तेजी के साथ जाकर जुड़ जाता है, और जो हराम होगा दूर दूर क्यों ना हो। कुरान ने कहा हमने रिज्स को दूर किया। खुदा की कसम, मौका हुआ, चलो भी 3-4 बजे से मौका हुआ तो मैं बताऊंगा कि रिज्स और नेगेटिविटी में मुमासलत कितनी है। रिज्स होता ही नेगेटिव है, तो कुरान से साबित है नेगेटिव कभी जा ही नहीं सकता, कभी पॉजिटिव जाएगा। पॉजिटिव रहा करो। खुदा की कसम, मुझे नहीं पता कभी किसी ने इस पर रिसर्च की है या नहीं, लेकिन मैं बड़े यकीन से कह सकता हूँ, अली वालों को चेक कर लो, आंखों से लेकर दिल तक सब पॉजिटिव मिलेगा। सब पॉजिटिव। अली वाला
अली अल्लाह नहीं, मगर अल्लाह का मैग्नेट तो है ना, मकनातीस तो है ना। जुड़ना चाहते हो अल्लाह से, अली से मिल जाओ। क्यों? क्योंकि उस तरफ से अली उधर से जुड़ा है। यहाँ तू अली से जुड़ जा, खुद ही अल्लाह से मिल जाएगा। फिर इबादत करेंगे, क्योंकि जाहिर बात है ज़ियारत की तरह भी है, मसाजिद में कभी पढ़ना तो आखिर इस साइड पर कमाल होता क्या है? कोई था तो लोहा है, लोहा टक करके चिपक जाता है, जरूरत ही होंगे आप समझ। मैग्नेट लो, लोहा लो, लोहे को मकनातीस पे रखते जाओ, कुछ देर रगड़ो जरा अच्छी तरह, जब तक लोहा कहे मैं लोहा नहीं हूं। खुदा की कसम इन माओ को सलाम है जिन्होंने तुम्हारी तरबियत में लाए आप सलाम रगड़ो लोहे को जब तक लोहा न करना। अब क्या हुआ? अब मकनातीस को रखो एक तरफ, अब उस लोहे के टुकड़े को किसी और लोहे के करीब करो। अब लोहा नहीं रहा तो खुद मकनातीस हो गया। अली का यही कमाल है, जो अली से जुड़ गया अली उसे क्या कर देता है। जो अली नामी मकनातीस से जुड़ गया वो खुद मकनातीस हो गया, खुद मकनातीस हो गया। मैंने कहा था अशरा काफी बरस हो गए यहाँ के लाहौर में, मैंने कहा था सन्नमान में याद है क्या कुछ जगह हैं यहाँ जिनको मैं जानता हूँ, ला इश्क इल्ला हुसैन, मैंने अशरा उसका एक जुमला याद आ गया। आप देखो बैठे बोला जिंदगी कर, उसमें एक जुमला कहा था मैंने, क्या एक होता है पत्थर और एक होता है पारस। पारस का काम होता है वो उसके साथ पत्थर लगाओ सोने का हो जाता है, सोने का। मैंने कहा हुसैन ऐसा पारस है कि अगर उसके साथ पत्थर लगाओ तो वो पारस उसे सोना नहीं करता, उसे भी पारस ही कर देता है। अली ऐसा मकनातीस है कि जो उसके साथ जुड़ गया अली उसे भी मकनातीस कर देता है। फिर वो ज़माने में अली अली करवाता है, करवाता। बस हुसैन अली का बेटा, अली को खैर शुक्र कुव्वते परवरदिगार, हुसैन की कुव्वते परवरदिगार। ज़माना कहता अली बादशाह ने खैबर का दर एक उंगली पर उखाड़ दिया, ऐसी ताकत है। तो हुसैन के लिए वैसी ही ताकत हुई, एक उंगली से खैबर का दर उखाड़। मैं कहता हूँ जो एक उंगली से खैबर का दर उखाड़े, अल्लाह जाने अली असगर का लाशा कितना भारी था, हुसैन उठाकर 7 बार आगे जाता। अजर को जैसा हुसैन बेशक यही हमें ये बेशक मुझे पढ़ना है आज गहवारे की बरामदगी है बाबुल हवाज। और देखो मैंने कई बार तुम्हें सुनाया है, आज फिर बताऊं, मैं मकबरे हमीद इब्न मुस्लिम नहीं पढ़ता। यजीद का पेट बनता था,
पुराने वक्तों में बादशाह जंगों को लिखने के लिए अपने नौकर भेजते थे, जो जंगों के हाल लिखने में आ जाता था, हमारी बढ़ा के लिखना, दुश्मन की घटा कर लिखना। यजीद ने 11 लोग भेजे थे करबला का वाक़या लिखने के लिए। उन 11 लोगों की टीम का सरबराह था हमीद इब्न मुस्लिम। आज़ाद खतीब हमीद ने कहा है, रिवायतें पढ़ते हैं, कमाल हो गई। जो घटा के लिखता रहा, उसकी रिवायतें इतनी बढ़ जाती हैं। दुश्मन बताएगा क्या हुआ था, सैयद सज्जाद से ना पूछे क्या हुआ था, बेटे से पूछो ना, सज्जाद से पूछो तेरे 6 महीने के भाई को कैसे मारा। मक्तल सैयद सज्जाद पढ़ता हल की सदा बुलंद की है, खैमे में कोहराम हुसैन पलटे, बीबी क्या हुआ का जब से आपने हल में कहा है ना, अली अस्कर झूले में कभी इधर गिरता कभी इधर, बस सुनते जाओ, लाओ बीबी मुझे लो, शायद मैं पानी की कोई सभी कर सकूं। कब आई, अगर इजाजत दो, जानती हूँ बड़ा नाजुक मौका है, थोड़ी सी इजाजत दो, मैं एक लम्हे को अंदर ले जाऊं। ले जाएंगे, बीवी ले गई, वापस आई, हुसैन को जो अस्कर सौंपा, जानते हैं क्या आलम था। अली अस्कर को एक पोशाक पहनाई, आंखों में सुरमा डाला, कमर में छोटा सा पट्टा बांधा, सर पे एक पट्टी बांधी है। क्या बीबी ने क्या किया, क्या मैं जानती हूँ अब असगर वापस नहीं आएगा। हुसैन, मैंने तेरा सिपाही भी बनाया और दुल्हा भी बनाया। पोशाक पहनाकर सुरमा डाल के मैंने दुल्हा बना दिया, मैंने पटका बांध के तेरा सिपाही बनाया, ले जा अपने नासिर को। हुसैन बड़े खैमे की तरफ दरवाजे पे आए, किसी ने पीछे से हुसैन का दामन खींचा, हुसैन मुड़े, अब क्या देखता है, हुसैन की 4 साल की बेटी बाबा भैया को कहाँ ले जा रहे हो, का बेटा पानी पिलाने ले गया। अब सुनोगे जो मातम के लिए आए हो, पानी का नाम आना था। सकीना बेसाखा बोली, बाबा नहीं, चचा बास भी यही कहते, फिर वापस नहीं जाओ। अल्लाह देखो, मैं बड़ा सख्त करके पढ़ा, अगर मैं रो पड़ा मैं कैसे पढ़ूंगा, मैंने बड़ा जब्त किया। बाबा का बेटा बड़ा फर्क है, तेरा चचा अब्बास भी गया था, वो तो अब्बास था ना, उसने जाके पानी मांगा नहीं, वो अब्बास था। का बाबा तो आप, का बेटा मांगा तो कभी हुसैन ने भी तो सुन सकेगा ना पढ़ सकेगा, हमारा रोना काम नहीं। चेहरे पे कपड़ा नहीं समझे, हुसैन घर वालों को
तीर तो ना चलाते। और मैं सदके जाऊं, देखो जरा छोटे से बच्चे को कैसे बिलक बिलकते रो रहा। कुरान समझ, हाँ कोई हुसैन से पूछे, हुसैन अपना कुरान ही लाया था, चादर हटाई, कहा अगर तुम समझते हो कि हुसैन ने तुम्हारा कोई नुकसान कर दिया है, जो हुसैन का रास्ता और पानी रोक के बैठे, ये तो 6 महीने का मासूम बच्चा, इसे तो पानी पिला दो, नहीं पिलाते। अब है मेरा कलाम उस दिल से, लेकिन मैं क्या करूं, मैं पर्दा नहीं रख सकता। जो मेरा बड़ा जालिम है, हाथ जोड़ के नजर आ लो, तुम्हारे दिल बड़े नरम है, मेरी माए बहने पर्दे में मौला के पर्दे सलामत रखे, आबाद झोलियों को आबाद रखे, जो औलाद मांगते हैं मौला असरत का सदका अदा करे। हुसैन ने असरत को उठाया, हुज्जत खुदा के बेटे, तू हुज्जत है, असगर हुज्जत तमाम कर। अब क्या किया सर ने, सुनोगे, बताओ। कहते हैं अली ने उंगली पर खैबर उठाया था, और जितनी ताकत अली ने खैबर उखाड़ने में लगाई, उससे ज्यादा ताकत अली असगर को अपनी सूखी जुबान अपने तालु से छुड़वाने में, हौसले से हाथ जोड़कर उससे ज्यादा ताकत से असगर ने सूखी जुबान को तालु से छुड़वाया। अल्लाह जाने असगर की जुबान की हालत क्या थी। वो जालिम फौज जो जुल्म पर आमादा थी, असगर की जुबान को देखकर रोने लगे। ऐसा रोए इब्ने पिछले साल को ये खतरा हो गया कि बगावत हो जाए, और भला के पास खुदा लानत करे इसे, और भला तू अरब का सबसे बड़ा तीर अंदाज कहता है खुद को, और भला आज तेरा इम्तिहान है, अब बोल किस पहाड़ को गिराना है। अब पहाड़ में हुसैन की गोद में ये बच्चा है, हुसैन के कलाम को खता कर और बना, वरना बगावत हो जाएगी। मुझे अपना दिल मजबूर करने, और आप वाले बैठे हो, अज़ादार मुझे माफ करना, मेरी माँ बहन बैठी है, रुक जाओ, सांस ले लो कुछ देर के। चलो मैं तुम्हें अरब की एक तारीख बताता हूँ, कहीं कोई मर न जाए, मुसलसल सुनते दिल बंद हो जाए। अरब ने मिलकर 6 तरह के तीर बनाए, 6 तरह, और 6 तीरों में से 5 तीर ऐसे थे जिनके लिए अरब ने कहा था ये तीर चलाओ जिसमें मर्जी, लेकिन जब बात आई ना 6ठे तीर की, इसका नाम था तीर सहशुबा। तो अरब के वो जंगली बद्दू, उन्होंने कहा पहले मुआहिदा होगा, फिर 3 सिपाहियों को दिया जाएगा। क्या मुआहिदा? कहा हम पहले शराइत लिखेंगे, क्योंकि ये तीर बड़ा सख्त है। क्या शर्तें? पहली शर्त, ये तीर सिर्फ उस शख्स को मारा जाएगा जो सर से पांव तक लोहे की सिरा में बंद होगा, क्योंकि ये तीर इतना भारी था, लोहे की चादर को फाड़ देता।
पे